हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टीचिंग किंग, जहां पे आप बनेंगे सब्जेक्ट में किंग। सीधी बात, नो बकवास। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स। सब्जेक्ट इज business studies and the topic name is the difference between business, profession and employment. In the previous lecture we have already discussed the introduction of economic and non-economic activities as well as meaning of business and features of, or you can say characteristics of business. Today we are going to continue with the difference between these three, because we know that there are three types of economic activities, that is business, profession and employment. So now we are trying to understand the difference between these three. So first let's try to understand, these are the main points I have written, main points of difference. So first we are trying to understand the meaning. Okay, it should be clear, meaning should be clear to you. What is the meaning of business, what is the meaning of profession and what is the meaning of employment. Thereafter the other things will be automatically clear to you. So let's try to understand the meaning of business. Yesterday we have already discussed what is the meaning of business. Business is an economic activity which are undertaken for what purpose? To earn a profit by satisfying the needs of others. This is the meaning of, simple meaning of business. Thereafter, profession. For the profession, any activity which required special skill, special training, special education, or you can say special degree. मतलब कोई भी एक्टिविटीज में ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो जिसमें आपके पास स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए, स्पेशल आपके पास एजुकेशन होना चाहिए. लाइक इफ यू वांट टू वर्क एज अ लॉयर, okay, if you want to solve the legal problems, for that all person cannot do this. For this you must have LLB degree, or you can say LLM degree. So it is what? It is the profession. And thereafter, third is the employment. Activity which you are doing for a fixed return, for fixed amount of salary, and you have to follow all the instructions of your employer. It is what? It is the employment. So these three: business, profession and employment. This is the meaning. I hope the meaning is clear. Now next point of difference is the mode of establishment. बहुत सिंपल है. एस्टैब्लिशमेंट कैसे करनी? अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस में हम कैसे एस्टैब्लिशमेंट करेंगे? मेरे माइंड में थॉट्स आया that I have to start the business, and then after I will what I will do? I will start all the legal formalities. I have to fill the form, I have to take permissions, and I have to make license, with all the legal formalities. If there is a company, then I have to prepare memorandum, article of association. So this all the legal formalities will be there, and thereafter I will able to start the business after getting license from the government. तो ये इस तरह से एस्टैब्लिश होगा. सेकंड क्या है? प्रोफेशन. प्रोफेशन आपको क्या करना पड़ेगा? अगर प्रोफेशन में आपको वर्क करना है तो आपको उस पर्टिकुलर जो प्रोफेशन में हो, सपोज डॉक्टर हो, सो आपको उस प्रोफेशन का मेंबर बनना पड़ेगा. Like if you want to work as a doctor, so you should be a member of that डॉक्टर एसोसिएशंस. उनका जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, जो आपको मेंबर बनना पड़ेगा उस चीज का, और देयर आफ्टर यू कैन स्टार्ट द बिजनेस. मींस यू शुड बी अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एसोसिएशंस, और यू कैन से यू शुड बी अ मेंबर. आप उस चीज, सपोज सीए बन रहे हो तो सीए के आप मेंबर होने चाहिए, जो भी एसोसिएशन है उसका आप मेंबर बनोगे, एंड देयर आफ्टर यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशन. उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? सिंपल, आप जैसे ही जॉब पे लगोगे, यू विल गेट द अपॉइंटमेंट लेटर, ओके, फ्रॉम द कंपनी, और जो भी टर्म्स ऑफ सर्विसेज होंगे उसमें लिखे होंगे, एंड यू हैव टू गिव योर परमिशन दैट आई विल फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस. देयर आफ्टर यू कैन स्टार्ट योर जॉब. तो इस तरह से क्या होगा? एस्टैब्लिशमेंट होगी बिजनेस की, प्रोफेशन की और एम्प्लॉयमेंट की. सिंपल. उसके बाद है थर्ड, नेचर ऑफ वर्क. मतलब क्या क्या करना पड़ेगा बिजनेस में? क्या करोगे? सिंपल, either you will sell goods or you will provide services to your client. सिंपल. बिजनेस में वही होगा, गुड्स बेचोगे या फिर सर्विस आप सेल करोगे. उसके बाद आता है प्रोफेशन में क्या करोगे? प्रोफेशन में आप स्पेशल वर्क करोगे, स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करोगे. किसको? टू द क्लाइंट. जैसे आप लॉयर हो तो उनके आप जो भी केस होंगे या उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो लीगल प्रॉब्लम्स होगी, वो सोल्व करोगे. ओके. अगर आप डॉक्टर हो तो आप पेशेंट को
अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छी से अच्छी मेडिसिन देके उनको सर्विस प्रोवाइड करोगे, ये आपका काम होगा। एंड द थर्ड इज द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा, ओके, उसने जो आपको काम दिया होगा एज इट इज, जो भी वर्क, जो भी लिमिट होगी, टाइम लिमिट, उसके हिसाब से आपको काम करना होगा एंड यू विल गेट योर सैलरी। मतलब नेचर ऑफ वर्क क्या क्या होगा। बिजनेस में गुड सर्विसेज होंगे, प्रोफेशनल में स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करोगे आप आपके क्लाइंट को, एम्प्लॉयमेंट में आपके जो एम्प्लॉयर ने बोला होगा, उस जो भी आपका डिसाइड हुआ होगा, दैट यू हैव टू डू। सो दिस इज द नेचर ऑफ वर्क। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या एजुकेशन होना चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए। बिजनेस में देयर इज नो नीड ऑफ क्वालिफिकेशंस। इफ यू आर अनएजुकेटेड देन आल्सो यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, बट फॉर दैट यू मस्ट हैव कैपिटल। अगर कैपिटल है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। देयर इज नो एनी रेगुलेशंस कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, देन देयर इज नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपके पास इफ यू हैव मनी, इफ यू हैव स्किल ऑफ दैट बिजनेस, if you have knowledge, then you can simply start the business. So don't worry, you don't have the requirement of qualifications, but for the profession you must have qualifications. Let's say if you want to become a doctor, ऐसे ही डॉक्टर नहीं बन सकते, you must have degree, MBBS, MD, BHMS, DHMS, there are many degrees, okay, according to your interest, but आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। if you want to become a lawyer, आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। if you want to become a teacher, it is also profession, so you must have B.Ed डिग्री। सिंपल। तो प्रोफेशन में आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। क्या होगा इसमें, क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। एंड एम्प्लॉयमेंट में इट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वर्क विच यू आर डूइंग। आप किस टाइप का वर्क कर रहे हो, ओके, उसके ऊपर आपकी क्वालिफिकेशंस डिपेंड होगी। क्वालिफिकेशन उसमें भी होगी, बट क्या होगा, इट्स डिपेंड ऑन द वर्क, कि आप कौन से टाइप का वर्क करो। किसी में 12th होगा, किसी में ग्रेजुएशन होगा, किसी में पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है, किसी में PhD भी हो सकता है। सो इट्स डिपेंड ऑन द वर्क। So simple, you can write down in the exam. It's very easy. Qualifications and thereafter reward or return. इतना सब कुछ करने के बाद क्यों कर रहे हो? Simple है ना, क्यों कर रहे हो आप? Because you want what? Return. You want return. अब बिजनेस में ऐसे रिटर्न क्या मिलेगा, उसके फॉर्म अलग अलग होंगे। बिजनेस में आप अगर करो तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट प्रॉफिट। सिंपल, ओके। रिवॉर्ड क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट मिलेगा बिजनेस में। उसके बाद प्रोफेशन में आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा, फ्री में तो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो आप, ओके, इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जब भी आप अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करोगे, यू विल गेट फीस फ्रॉम देम, ओके। अगर डॉक्टर हो आप तो आपके क्लाइंट के पास आपको फीस मिलेगी, जो भी 500 रुपीज, जो भी 1000 रुपीज जो आपने फिक्स किया होगा, वो आपको फीस मिलेगी। सिंपल। एंड द एम्प्लॉयमेंट यू विल गेट रिवॉर्ड मीन्स व्हाट, यू विल गेट सैलरी। इट्स डिपेंड ऑन द वर्क, कि किस टाइप का वर्क कर रहे हो, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपीज, इट्स डिपेंड ऑन योर वर्क एंड स्किल। तो आपको वहां पे सैलरी मिलेगी, फिक्स सैलरी, ओके। एंड देयर मे बी एनी इंक्रीमेंट्स, इंसेंटिव्स, इट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ जॉब। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपको जो भी होगी फीस जो होगी वो आपको मिलेगी, एंड एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड, ओके। चलिए, सिंपल है। उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, विदाउट इन्वेस्टमेंट इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट द बिजनेस। अगर बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो पहले आपको यू हैव टू एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज, यू हैव टू एम्प्लॉय, you must have employee for the raw material, you must have the amount, so capital investment should be there, either you have or you will borrow from the market. So मतलब in short what I want to say कि आपके पास कैपिटल होगी तो ही बिजनेस स्टार्ट होगा, वरना नहीं होगा। सो कैपिटल रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट इज मस्ट इन द बिजनेस। प्रोफेशन की बात करें तो इसकी कंपेयर में कम रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनीथिंग, so no need to establish any factories and other things. You must have one office and you will start, and the other things like laptop and all the things वो होगा आपके पास, you can start your profession, ओके। सिंपल। तो मतलब वहां पे भी रिक्वायरमेंट होगी, बट क्या होगा, इसकी कंपेयर में कम रिक्वायरमेंट होगी। एंड द लास्ट, एम्प्लॉयमेंट, देयर इज नो नीड ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सिंपल है, मैं जहां पे जॉब कर रहा हूं तो वो सब कौन करेगा, एस्टैब्लिशमेंट का काम ओनर करेगा। जस्ट मुझे मेरा वर्क करना है, मुझे इसके बदले सैलरी मिली, तो वहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल। इसके बाद आता है रिस्क। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया आपने, सिंपल है, बिजनेस में आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया तो रिस्क तो होगा ही होगा। देयर विल बी अ रिस्क, नेचुरल रिस्क, यस्टरडे वी हैव डिस्कस नेचुरल रिस्क और मैन मेड रिस्क। रिस्क विल बी देयर, you cannot deny that there will be no risk, there will be a risk in the business.
इफ यू टॉक अबाउट प्रोफेशन में रिस्क के चांसेस थोड़े कम होते हैं. अगर इट्स डिपेंड ऑन योर क्लाइंट, आपके क्लाइंट किस क्लाइंट के साथ आप डील कर रहे हो, तो वहां पे बैड डेब्ट्स के चांसेस होते हैं. बट बिजनेस की कंपेयर में बहुत कम चांसेस है रिस्क के. और एम्प्लॉयमेंट में देयर इज नो रिस्क बिकॉज यू आर नॉट इन्वेस्टिंग एनीथिंग. You are not investing money, you are not investing your capital in the business. तो यहां पे क्या होगा, there is no risk. सिंपल समझ लो, बिजनेस में रिस्क होगा ही होगा बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. प्रोफेशन में बिजनेस से कम क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट होगा, और एम्प्लॉयमेंट आपने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो देयर इज नो रिस्क. सिंपल. उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. मीन्स व्हाट, you are transferring your assets or your ownership to others. बिजनेस में पॉसिबल है. सिंपल. जैसे मैंने बिजनेस किया एंड मैंने अब सोचा कि मुझे अब आगे बिजनेस नहीं करना है और आई वांट टू गो इन एनी अदर फील्ड, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, आई विल सेल माई होल बिजनेस टू एनी अदर पर्सन. तो यहां पे इंटरेस्ट ट्रांसफर करना पॉसिबल है. जैसे मेरे पास कोई बिजनेस है, लेट्स से अब उसकी वैल्यू 3 करोड़ रुपीस है, तो मैं आपको सेल कर दूंगा दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड टेक माई बिजनेस, यू कैन डू इट, और आई विल गेट 3 करोड़ रुपीस and I will invest that in other business. तो यहां पे ट्रांसफर करना पॉसिबल है, बट प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है. आप सोचो क्यों नहीं पॉसिबल है, डॉक्टर हूं तो मैं ही डॉक्टर रहूंगा, आई कैन नॉट गिव माई डिग्री टू अदर्स. ओके, सो यहां पे ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है. और एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है. आई कैन नॉट से दैट मेरे बदले ये वर्क कर रहा है तो सैलरी मुझे मिलनी चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट. आपको ही वर्क करना पड़ेगा, आपके पास स्किल है और आपको ही सैलरी मिलेगी. तो मतलब प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है. एंड इन द बिजनेस इट्स पॉसिबल टू ट्रांसफर द बिजनेस. ओके, सिंपल. उसके बाद है कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स व्हाट, रूल्स एंड रेगुलेशंस. बिजनेस देयर इज नो एनी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द बिजनेस. बिजनेस खुद अपने लिए नहीं बनाएगी, ओके, वो एम्प्लॉय के लिए बना सकती है, बट देयर इज नो सच टाइप ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इन द बिजनेस. इट डिपेंड ऑन द ओनर, इट्स डिपेंड ऑन द ओनर्स नेचर. उसके बाद आता है प्रोफेशन. यू हैव टू फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट. व्हाई, बिकॉज आप जिस भी प्रोफेशन के मेंबर बन रहे हो तो उसके रूल्स रेगुलेशंस होंगे. इफ यू आर मेंबर ऑफ सीए एसोसिएशन देन यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन. आपने बहुत बार सुना होगा, आप जाते हो तो आपको सीए बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा कि ये हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं है. मींस हमारे ये हम नहीं कर सकते बिकॉज कोड ऑफ कंडक्ट मींस एसोसिएशन ने हमें अलाउ किया हुआ नहीं है. मींस व्हाट, दे हैव टू फॉलो देयर कोड ऑफ कंडक्ट. इफ यू टेक द एग्जांपल सीए कैन नॉट गिव देयर क्लाइंट इंफॉर्मेशंस टू अदर्स. ये भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है. मतलब आपके पास जो भी, क्योंकि क्लाइंट का इंफॉर्मेशन पूरी किसके पास होगी, सीए के पास होगी, बट सीए कैन नॉट गिव that informations of his client to any other client. तो ये भी code of conduct है, means they have to follow the code of conduct, means rules and regulations. उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट में यू हैव टू फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट, बट वो कोड ऑफ कंडक्ट कौन करेगा, एम्प्लॉयर करेगा. जो जिस भी कंपनी में या जहां पे भी आप जॉब कर रहे हो तो वहां के रूल्स रेगुलेशंस होंगे. दैट रूल्स रेगुलेशंस यू हैव टू फॉलो विच इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ when you are joining the company, it will be decided at that time and you have to follow. If you are not following then you will be responsible for that. मतलब कोड ऑफ कंडक्ट किसमें होंगे, प्रोफेशन में भी होंगे और एम्प्लॉयमेंट में भी होंगे. बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होंगे. उसके बाद लास्ट है एग्जाम्पल्स. नाउ टेक द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. बिजनेस की बात करें तो यू आर स्टार्टिंग लेट्स से फैक्ट्री. ओके, यू आर स्टार्टिंग फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेट्स से this marker. So this is what, this is the business. You are starting factory for manufacturing this board. So this is what, this is the business. Or you are going to start any soap. You will purchase the goods directly from the company. You are not going to manufacture, but you will purchase from that company and you will sell to your customers. Simple. This is a business. And profession. Profession. You are a CA. You are a doctor. You are a lawyer. You are teacher. So these are all are the examples of what, profession. Okay, you must have special skills, special knowledge, special qualifications for that. And employment, you are working in the bank, you are working in insurance companies, you are working in any other company. So these are what, these are all are the types of employment. So these are the practical examples of business,
प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. Let's revise फटाफट से. Meaning we have discussed, mode of establishment. Here थॉट्स will come in your mind. आपके माइंड में थॉट्स आएगा, फिर जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं यू हैव टू फॉलो एंड यू विल स्टार्ट द बिजनेस. प्रोफेशंस पे आपके जो भी आपका एसोसिएशन होगा उसमें आपको मेंबर बनना पड़ेगा एंड देयर आफ्टर, और एज अ मेंबर दैट फी यू हैव टू पे. जो भी पर्टिकुलर फी होगी, मंथली मेंबरशिप जो फी होती है वो आपको पे करनी होगी एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशन. और एम्प्लॉयमेंट में आपका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो एग्रीमेंट होगा वो आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना होगा दैट यू हैव टू साइन एंड यू कैन स्टार्ट योर जॉब एंड यू विल गेट अपॉइंटमेंट लेटर. तो ये क्या हो गया, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. नेचर ऑफ वर्क मींस इसमें आपको क्या क्या करना है. बिजनेस में आपको गुड सर्विसेज होगी, प्रोफेशन में आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, स्पेशल सर्विसेज टू योर क्लाइंट, एंड एम्प्लॉयमेंट आपको जो भी आपका एम्प्लॉयर बोलेगा वो आपको काम वहां पे करना होगा. सिंपल. इसके बाद है क्वालिफिकेशंस. बिजनेस देयर इज नो नीड ऑफ क्वालिफिकेशंस इफ यू आर अनएजुकेटेड एंड इफ यू हैव द स्किल, इफ यू हैव द नॉलेज यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस. प्रोफेशन you must have qualifications. Without qualification it's not to be a professor. If you are CA, so you must have CA degree. If you are doctor, you must have, I told you, degrees, the BHMS, MD, MBBS. There are many degrees you must have according to your interest. And employment, it's depend on the type of job. That will be a qualifications, but it's depend on the work. And thereafter, reward or return. इन बिजनेस आप इतना सब करोगे आपको क्या मिलेगा रिवॉर्ड में. तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्रोफेशन में आपको जो भी फीस होगी वो आपको मिलेगी, एंड एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट योर सैलरी और कमीशन. देयर आफ्टर कैपिटल इन्वेस्टमेंट. इन बिजनेस इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट अ बिजनेस विदाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट. सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल बी देयर. जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करो कैपिटल होगी तो ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. प्रोफेशन में क्या होगा, इसकी कंपेयर में कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और एम्प्लॉयमेंट में देयर इज नो नीड ऑफ capital. You can directly join the particular company if you have that skill. And risk, obviously यहाँ पर हमने कैपिटल इन्वेस्ट की है तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा होगा, यहाँ पे कम है तो कम रिस्क होगा, यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होगा. जो भी रिस्क होगा वो कौन करेगा, ऑनर का रिस्क होगा. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हियर पॉसिबल, हियर नॉट पॉसिबल, हियर ऑल्सो नॉट पॉसिबल. ओके. कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस. बिजनेस में कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशंस आप खुद के लिए नहीं बनाते हो, बट प्रोफेशन में आपका जो एसोसिएशन होगा उसको आपको फॉलो करना होगा, जिसके मेंबर होंगे. और एम्प्लॉयमेंट में भी क्या होगा, जो एम्प्लॉयर है आपका, जो कंपनी है, उसके जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होंगे दैट यू हैव टू फॉलो. दैट मे बी रिलेटेड टू लीव और रिलेटेड टू वर्क, रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ वर्क, व्हाटएवर. उसके बाद है लास्ट एग्जाम्पल. That I gave you the example of factories and all the things. Profession में CA, doctor, lawyer, and employment में you are working in the bank or insurance company. So this is for today. I hope your concepts are clear. अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, so please कंजूसी मत करना. Like the video, share the video, and give your feedback in the comment box so that I can come up with the धमाकेदार videos which will be definitely beneficial for you. So फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बने रहिएगा मेरे साथ. नो बकवास, सीधी बात जो आपको सब्जेक्ट में बनाएगा. ठीक, मिलते हैं फिर टीचिंग किंग के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.